Assalamualaikum. Grade 7. Faiza Nadeem, your English teacher, is standing here in front of you, wishing, praying and hoping the best in this world and in the hereafter for you. ठीक है, लेकिन इस the best को achieve करने के लिए you have to put in a lot of effort as well. So, from my prayers, wishes and hopes, and with your input, inshallah, Rabbul Alameen will give you the best. So what we are going to do today? Let's start today's lesson and let's find it out. जी, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, what has the board described to you? The board has practically asked you to open your scientific English grammar. And the topic that we shall be doing today is the articles. ठीक है? याद है articles के सिलसिले का पहला लेक्चर हमने किया था? हमने उसमें क्या जाना था? हमने उसमें जाना था कि there are two types of articles. One, definite articles. Two, indefinite articles. और हमने पहले लेक्चर में किए थे indefinite articles a और an और उनका correct usage in the sentences, and we did the reinforcement by doing exercises. Today we are going to do the definite article. Definite article आपका कौन सा है? The. हर consonant के साथ बनेगा the और आपके vowels के साथ होगा the, right? तो use of the in the sentences. कहाँ use होता है the? In a noun already introduced to the speaker. अगर एक noun आपको पहले से introduce करा दिया जाता है तो उसके बाद जब उस specific noun से related कोई बात की जाती है तो वो होती है the. ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि I have bought a book and a pencil. ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने एक book और एक pencil buy की है, right? अब मैं आपको फर्दर इस बुक और इस पेंसिल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दूंगी तो मैं क्या कहूंगी? मैं ये कहूंगी द बुक एंड द पेंसिल बोथ आर वेरी एलिगेंट, आर न्यू, आर वर्किंग वेरी नाइस, आर माय फेवरेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. लेकिन जो नाउन मैंने पहले आपको अ के साथ इंट्रोड्यूस कराया था वो बाद में मैंने आपको द के साथ रिलेट किया है. ठीक है, I have bought a dog. The dog is my favorite, or I have named the dog Bozo. I have bought a cat, and the cat has become very naughty lately, right? तो जो noun पहले मैं indefinite article से introduce कराऊंगी वो बाद में आपका definite या the से use होगा. Second usage of the कहाँ होता है? Second usage of the होता है when you're speaking of a particular thing. जैसे the camels from Arabia are known for their grace. ठीक है? The horses from Arabia are known for their grace and their beauty. या फिर आप यूँ कहो the apple of Sawat are famous for their flavor. ठीक है? The peaches from the Sawat Valley are known for their juicy texture. ठीक है, यानी कि कोई specific genre किसी भी noun की जब हम describe करें तो वो आप the के साथ करेंगे. Third usage क्या है? When a singular noun represents a whole class. जैसे the cow is a farm animal. I'm speaking about collectively all the cows that are present in the world. So I am referring to all of them as the. या मैं आपसे ये कहूँ the lion is a king of the forest. या the lion is the king of the forest. I'm speaking about all the lions in all the forests and I'm using the word the. ठीक है, next कहाँ होता है? Before unique common nouns. Unique common nouns कौन से होंगे? जैसे the sun, the moon, the Mars, the Jupiter, the president, the governor, the prime minister.
ठीक है, द मिनिस्टर, सो दे आर ऑल यूनिक कॉमन नाउन्स और उनसे पहले हम यूज करते हैं द। आगे और भी यूजेज है, लेट्स मूव ऑन। जी, बिफोर एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड एज नाउन, ठीक है, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नेशंस, rivers, communities, seas, mountain ranges, important events, directions, the Himalayas, ठीक है, the news, the Dunya channel, the Christians, the Muslims, the Hindus, the sun, the moon, the east, the west, all of them will use the before them, ठीक है, superlatives के साथ, positive degree नहीं, comparative degree नहीं, superlative. He is the worst student in the class. I have the worst anger, right? You have the best handwriting. तो जो भी superlative degree होगी adjective की, उससे पहले the लगेगा. Possessive pronoun से पहले. Noun नहीं, ये हाँ आएगा possessive pronoun. ठीक है, मुझे भूख लग रही थी, मैंने प्रो खा लिया. जैसे आप ये बात करें ना, The stone hit me on the leg. अब ये मेरी लेग है. आपको ये पता है कि पत्थर ने मुझे मेरी लेग पे मारा, पत्थर मुझे मेरी लेग पे लगा, लेकिन मैंने माई लेग नहीं लिखा, द लेग लिखा है. ठीक है, आई हैव अ पेन इन द स्टमक, मेरा मटका है, उसमें मुझे दर्द हो रही है. ठीक है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एक इन माई हेड, मेरा सर है, मेरा दिमाग है, इसमें मुझे दर्द हो रही है, लेकिन माई नहीं, उसकी जगह द. राइट, अब हम वो केसेस रीड करते हैं जहां आर्टिकल्स ओमिट किए जाते हैं. कौन से केसेस हैं? सबसे पहला तो आपका प्लूरल कॉमन नाउन है. जो उतने भी कॉमन नाउन्स प्लूरल हैं, उन तमाम कॉमन नाउन्स से पहले आर्टिकल कोई नहीं लगता. प्रॉपर, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता. ठीक है, द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स. ठीक है, द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स. स्टोन्स प्लूरल कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, इससे पहले नहीं लगेगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द नहीं लगेगा. राइट, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता. कि ये है, अगर आप अपनी बुक के पेज पे चेक करोगे तो उसपे सारे के सारे इन्फिनेटिव्स हैं, टू से शुरू होने वाले. ठीक है, तो याद रखो, जहां पे भी टू लग रहा होगा उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. जितने फ्रेजेस में टू लग रहा होगा उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. जैसे टू कैच फायर, या फिर एट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल. राइट, इन सबसे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. टू और एट रट लो की है. ठीक है, बताना नहीं किसी को. टू लीव स्कूल, टू स्ट्राइक रूट, टू सेट सेल, खामोशी से याद कर लेना. राइट, अब नाउन्स यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो किसी भी लिविंग कॉन्क्रीट नाउन्स को रेफर कर रहे होते हैं. जैसे मैं कहूँ, आई स्माइल्ड एट द थॉट ऑफ हैविंग अ न्यू किचन. ठीक है, द थॉट इज द abstract noun which is referring to the concrete noun kittens. तो उससे पहले मैंने द लगाया है. He was appointed a teacher. ठीक है, यहाँ पे द नहीं लगेगा, यहाँ पे अ लगेगा. ठीक है, जैसे the thought of a kitten, the thought मैंने कॉम्प्लीमेंट में यूज कर लिया है तो मैं a kitten कहूंगी. ठीक है, समझ आ गया है? Let's go ahead. अब आर्टिकल की पोजीशंस. ठीक है, जनरली चाहे डेफिनेट आर्टिकल्स हों चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हों, वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं. अ बुक, द यूनिवर्सिटी, द हिमालयाज. ठीक है, एन एनवेलोप, अ पेयर ऑफ सिजर्स. जो एडजेक्टिव्स किसी स्पेसिफिक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उन एडजेक्टिव्स से पहले आते हैं. जैसे द एंग्री टीचर, आई एम द एंग्री टीचर. पढ़ नहीं रहे हो गंदे बच्चों, पढ़ो सारे के सारे. ठीक है, द एंग्री टीचर, अ रेड एप्पल, एन ऑरेंज, अ स्वीट ऑरेंज. ठीक है, तो ये सारे
एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले आते हैं, आर्टिकल उनसे पहले आते हैं। फिर मैनी, सच और व्हाट को वो फॉलो करते हैं आर्टिकल्स। कैसे? मैनी अ मैन, सच अ फेलो, ठीक है, वो इन वर्ड्स के बाद और नाउन से पहले आते हैं। फिर एडजेक्टिव्स में अगर टू, हाउ, सो प्रेजेंट है तो वो एडजेक्टिव के बाद आएंगे, जैसे टू गुड अ न्यूज, हाउ ग्रेट अ सम, एज गुड एज अ मैन, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ठीक है। तो ये नाउन से पहले और इसको फॉलो करते हैं। और बोथ के बाद आते हैं ऑल द बॉयज, बोथ द ब्रदर्स, ऑल द गर्ल्स, बोथ द सिस्टर्स, ठीक है, ये इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है स्पेशल यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक स्पेशल तरीके से भी यूज हो सकते हैं, वो आपको स्पेशल मैसेजेस भी दे सकते हैं। कैसे? अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ इन दिस स्पेसिफिक सेंटेंस वी आर स्पीकिंग अबाउट वन काउ, ठीक है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। लेकिन अगर मैं ये कहूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वॉज नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर, ठीक है। तो आई एम स्पीकिंग अबाउट टू काउस। मैंने स्पेसिफाई किया अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक गाय है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, हॉल्स्टीन काउ है। लेकिन जब मैंने ये स्पेसिफाई किया कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि मैं दो काउस की बात कर रही हूँ। अ गुड बॉय एंड अ गर्ल, द गर्ल इज नॉट गुड, ठीक है, आई एम स्पीकिंग अबाउट वन गुड बॉय एंड द गर्ल हु इज नॉट गुड। लेकिन जब मैं कहूँ अ गुड बॉय एंड अ गर्ल, तो बोथ ऑफ देम आर गुड। So I'm telling you that both the boy and the girl are good. जैसे she is a better singer than a dancer, ठीक है। Now these are two people. One person who is better singer and one person who is a good dancer. And I'm comparing these two people और मैं यहाँ आपसे कह रही हूँ कि वो अच्छी सिंगर है as compared to उस अच्छे डांसर के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओमिट कर दूँ तो मैं आपको क्या कहूंगी? तो मैं आपको ये कहूंगी कि शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर। तो मैं एक ही लड़की की दो स्किल्स को कंपेयर कर रही हूँ एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट वन गर्ल, ठीक है। गिव मी हाफ अ रुपी, ठीक है, मैंने आपसे चेंज मांगी है, आई एम आस्किंग यू टू गिव मी चेंज, कि 1 रुपए का हाफ मुझे दे दीजिए। लेकिन अगर मैं कहूँ गिव मी हाफ रुपी, तो मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आधा रुपया यानी 50 वैसे दे दें, आपको तो मालूम भी नहीं होगा उसका। Let's forget those. I go to the school. If I am going to the school, I am going over there for any specific reason. किसी भी वजह से मैं वहां जा रही हूँ, ठीक है। बट मैं कहूँ कि I go to school, इसका मतलब है कि मैं वहां पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। यूसेज के आर्टिकल से सेंटेंस का मायने, उसकी मीनिंग्स, उसकी कॉम्प्रिहेंशन कैसे चेंज होती है, इसको आइडेंटिफाई करो। इसीलिए हर जगह द, अ, एन नहीं ठूसते, सोच समझ के यूज करते हैं। ही वेंट टू सी ऑन ए जर्नी, ठीक है, और ही वेंट टू सी फॉर फिशिंग, ठीक है। बट व्हेन ही वेंट टू द सी, he went to the sea for any other reason, right? इसी तरह से he went to jail, he was imprisoned, वो कैद किया अपनी सजा से। लेकिन अगर मैं कहूँ he went to the jail, तो he went over there for some other reason. Make a room for me, arrange a room for me, ठीक है, एक कमरा मेरे लिए आप अरेंज कर दें। I am coming and you have to arrange a room for me, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि make the room for me, तो इसका मतलब होता है कि मुझे किसी भी तरीके से अकोमोडेट करो, मेरा कोई भी काम करके दो।
किसी भी तरीके से मुझे अकोमोडेट करके दो। ठीक है, तो बेटो आर्टिकल्स का यूजेज इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ओवरलुक इट। ठीक है, इसको बिल्कुल ओवरलुक नहीं करो, इसको बहुत सेंसिबली यूज करो। हालांकि ये छोटे से आर्टिकल आसान सी गेम लगती है, मगर ये आसान सी गेम होती नहीं है। आपका कंप्लीट मैकेनिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर रूइन हो जाता है विद द अननेसेसरी यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। लेट्स डू द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको कह रही है कि आर्टिकल्स पुट इन करें। चलो मिलके करते हैं। गिव मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, मुझे एक चाय का कप दे दो। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच। उर्दू इज एन easy language. Dash Indus is a great river. The dash boy ate dash egg for his breakfast. The boy ate an egg for his breakfast. Dash inch is 1/12 of dash foot. An inch is 1/12 of a foot. He is dash boy in the class. Superlatives के साथ the. Worst boy in the class. Dash train arrived dash quarter of dash hour earlier. The train arrived a quarter of an hour earlier. It was dash historical event of great importance. It was an historical event of great importance. ठीक है? Dash umbrella is not much used in dash storm. An umbrella is not much used in the storm. The sun rises in the east and sets in the west. In the sea, there was an island where not a bird was found. An eye of an artist is very accurate. I bought an apple and an orange from the man. They saw an animal hiding in the forest. I held him by the nose and gave him a slap. Both the brothers were present in the school. These were 17th. My 18th is over there, okay? The performer spread upon the ground and the cloth of about the size of a sheet. One day an Arab fell into the hands of his enemy. What a clever boy he is. So I have done the exercise, all the 20 sentences with you. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the definite articles. ठीक है, definite articles यानी the. फिर हमने the का usage देखा. फिर हमने the के usage के बाद ये realize किया कि special places कौन सी है जहाँ articles use होते हैं, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ आर्टिकल्स ओमिट होते हैं, और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक यूनिक यूजेज ऑफ आर्टिकल्स का पढ़ा, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि आर्टिकल को हम इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं कि सेंटेंस की कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो जाए। और लास्ट में हमने की एक्सरसाइज, हंसते रहो खेलते रहो, लेकिन पढ़ाई पे भी बहुत फोकस रखो, और ये याद रखो बेटो कि आपकी दुआएं फौरन कबूल होती हैं, तो नमाज पढ़ के दुआ करनी न भूलो, और दुआ में हम सबको शामिल करना मत भूलो। राइट? जब तक फायजा नदीम आपको दोबारा मिलती हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। इंशाल्लाह we'll see each other again soon. Allah Hafiz.